السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کے سامنے ہم چونکہ آپ کی ماضی کی جو گردان ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو کاپی کے اوپر لکھ بھی لیا ہوگا، تو یہ سوال تھا کہ ان سیغوں کا فائدہ کیا ہے؟ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرت، نصرنا۔ تو ان کا فائدہ کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو اس حوالے سے ہمارا آج کا سبق ہوگا۔ یہ ہم نے پچھلے سال تھوڑا سرو کروایا تھا، تو اس میں ایک طالبہ نے یہ بنایا تھا ٹیبل، آخر میں اس کا نام بھی لکھا ہوا ہوگا۔ ہاں، یہ لکھا ہوا ہے مدرس، میرا نام لکھا ہے مرتبہ تمرین شعیب، سیمسٹر 1 سے ہیں۔ یہ اس وقت بھی انہوں نے سیمسٹر 1 میں تھیں جب انہوں نے دورہ سرو کیا۔ تو اب بھی کئی طلبہ جو ہمارے سیمسٹر 1 کے اس دورہ میں شریک کیا، تو ہمارے سیمسٹر 1 کے اسٹوڈنٹ انہوں نے یہ سارا یہ خاکہ تیار کیا، اور آج ہم اس کو دیکھتے ہیں اور یہ ایک سوال کے جواب کے ذمن میں آ رہا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونیشن کا اسکرین شاٹ بھیجنا ہے، وہ جنہوں نے میسج کیے ہیں نا وہ ان کو بھیجنا ہے پرسنل کے اندر، جنہوں نے ڈونیشن کے لیے میسج کیے گروپ کے اندر آپ نے ان کو بھیجنا ہے پرسنل۔ جی، تو آتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہے کہ ایک سوٹ ہو، اور ایک سوٹ وہ ایسا ہو کہ وہ اس کے 10 ڈیزائن، 10 کلر بن جاتے ہوں، 10 قسم کی کوالٹیاں مختلف، اور ایسا سوٹ آپ کے پاس ایک ہو۔ اور ایک ہے کہ آپ 10 سوٹ خریدیں، ایک سوٹ آپ نے خریدا مثلاً 1,000 کا، 2,000 کا، 5,000 کا ایک سوٹ خریدا، 10,000 کا ایک سوٹ خرید لیا، اور ایک 10 سوٹ خریدیں 10,000 کے، 1,00,000 روپیہ لگ جائے گا۔ تو ایک سوٹ جس کے اندر وہ ساری کوالٹیاں وہ پوری کر رہا ہے 10 والی، وہ ایک بہتر ہے یا 10؟ جی وہ ایک بہتر ہے استاد محترم۔ ایک بہتر ہے، 10,000 روپیہ صرف لگے، 90 بچت ہوگی۔ تو عربی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لفظ کو پکڑتے ہیں، وہ ایک لفظ آگے مختلف روپ اختیار کرتا ہے، مختلف اپنی شکلیں اختیار کر لیتا ہے، مختلف اس کے اندر کوالٹیاں اور صلاحیتیں اور اس کے معنی وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کیا معنی پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا اس کی کلر اس پہ آتے ہیں، کیا کیا کوالٹیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا ڈیزائن آتے ہیں، وہ آپ نے یاد کر لیے ہیں، ابھی ہم آپ کے سامنے صرف بیان کریں گے۔ وہ ہے آخر میں الف، نصرا، نصرو، اور نصرت، نصرتا، نصرنا، آگے بھی گردان ہے، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ یہ آخر میں جو علامتیں آپ نے یاد کی ہیں، یہ ہیں جن کی وجہ سے لفظ کی مختلف ساختیں بنی، اور لفظ کے اندر مختلف کوالٹیاں آئیں، اور لفظ کے اندر مختلف پاور پیدا ہوئی، لفظ کے مختلف معنی پیدا ہوئے۔ مثلا ناصرہ ہے، اس ایک مرد نے مدد کی، اس ایک مرد نے کھایا، اکالا، شاربہ، اس ایک مرد نے پیا۔ یہ ہے واحد مذکر غائب، ایک ایک مرد، اس ایک مرد، اس ایک مرد، ایک ہے تو ایک مرد وہ سامنے ہو جائے گا، اور ایک ہے اس ایک مرد، واحد مذکر غائب، واحد مونس غائب نہیں، واحد مذکر غائب۔ اچھا، لیکن جب الف لگا دیں گے نا، الف، تو یہ تثنیہ بن جائے گا،
ये पहचान करेगा कि अब ये सीगा दो के लिए बन गया है, पहले एक के लिए था अब दो के लिए। तो पहले आपने किया था, उस एक मर्द ने मदद की। अब ये एक मर्द की जगह पर क्या आ जाएगा? दो। उन दो मर्दों ने मदद की, दो। अब आपका माना ये बन जाएगा, उसकी बजाय उर्दू में उन आ जाएगा, उन दो मर्दों ने मदद की। तो ये किसने बताया कि अब इसका माना ये हो गया? एक आदमी मदद कर रहा है, हम कहेंगे नसरा। और दो मदद कर रहे हैं, हम कह देंगे नसरा। और ज्यादा कर रहे हैं, हम एक वाव का बस इजाफा कर देंगे जमा मुदक्कर के लिए, नसरू। और अगर एक औरत है तो नसरत, दो औरतें हैं नसरता, ज्यादा औरतें हैं, दूर हैं, गायब हैं, नसरना, ये सारे गायब के हैं, मुन्नस गायब, मुदक्कर गायब। और अगर मर्द सामने हो तो मर्द, उसके लिए ता होगा, ता। एक हो, दो हूं तो तुमा होगा, ज्यादा हूं तो तुम होगा। और अगर सामने एक औरत हो, कहना है तू एक औरत ने मदद की, तो फिर ये ती हो जाएगा, नसरती। और सामने दो औरतें हो, कहेंगे नसरतुमा। ज्यादा औरतें हों तो कहेंगे नसरतुन्ना, ये मुअन्नस मुखातब हो गया। ले जी, ये है इनका कमाल, और इनका काम, और इनकी खूबी, और इनका माना, और इनका फायदा। आपने लफ्ज एक पकड़ा, और उसके आगे अलामतें लगा लगा कर मुख्तलिफ मानी उससे पैदा कर लिए। जिसने सवाल किया था कि इनका क्या फ़ायदा है, वो यहाँ पर क्लास में मौजूद है कि नहीं? अगर मौजूद है तो हाथ खड़ा करें या माइक ऑन करके बताएं, जी मैं मौजूद हूँ, मेरा नाम ये है, बोलें। मेरा ख्याल है उस्ताद मोहतरम नहीं है वो। नहीं है? अच्छा। हैं, ज़ाहिर है हाथ उसकी खड़ा जो। किया हुआ, हुमा खान। हुमा खान ने हाथ खड़ा किया है, ठीक है। हुमा खान, आप ये बताओ, बात की समझ आ गई कि अभी नहीं आई? मजीद वाज़े करूं? देखो, हुमा खान जो है, हम लफ्ज बोलते हैं शारिबा, पानी पिया। अब ये पहला सीगा है, तो हमने बनाना है मुअन्नस के लिए, वाहिद मुअन्नस के लिए, तो क्या बना देंगे? शारिबा के आखिर में क्या अस्सलाम लगा वालेकुम देंगे? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मुझे मेरा मेरा सवाल था कि ये इसका क्या मकसद है, क्योंकि मैं पहली मर्तबा क्लास ज्वाइन की है, तो मुझे बिल्कुल यानी कि ग्रामर वगैरह से थोड़ा अ, मुश्किल ही होती है, तो वो एकदम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इस चक्कर में मैंने सवाल किया था कि इसका मकसद क्या है, ये सारी चीजें, मतलब ये ग्रामर के जो डेली जो बहुत ज्यादा गर्दाने पढ़ रहे हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि ग्रामर से मेरा समझे आप अच्छा सा रिश्ता रिश्ता नहीं है कोई खास। किसी भी किस्म की ग्रामर हो, उर्दू हो, ये हो, जो भी हो, हर हर जुबान की ग्रामर मुझे बहुत मुश्किल लगती है। इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि मकसद जो हम लोग सीख रहे हैं इतनी ज्यादा ग्रामर और ये सब चीजें, क्योंकि माशाल्लाह आपके पास तो स्टूडेंट्स हैं ना आपके, और मैं तो बिल्कुल ही आउटसाइडर हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है समझने में। मैं डेली उतार तो रही हूँ, जितना भी उतार पाती हूँ, क्योंकि जैसे रमजान के चक्कर में वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता। तो और इस वजह से मेरे पास काम भी पेंडिंग बहुत ज्यादा होता जा रहा है। मैं डेली जितनी कोशिश कर सकती हूँ गर्दाने उतारती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ। बस ये कि मैं समझे आप जो आप ग्रुप पे भेजते हैं ना, वो सिर्फ मैं एक रजिस्टर में उतार रही हूँ, वो समझने की कोशिश के बावजूद मैं समझ नहीं पा रही बिल्कुल। गर्दाने तो ये कि समझ में आना शुरू हो गई, यानी कि पढ़ना आ गई, कि उसको कैसे पढ़ते हैं जो आप सिखाते हैं ना, कि सर्रफा है, सर्रफा, सर्रफू, सर्रफत, सर्रफ्ता, ये जो पूरी नीचे तक पूरी जो सरफना तक जो होती है, वो तो चले पढ़ना आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनका मकसद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम
जो ये क्लास हो रही है एराब की या सर्फ की जो भी है क्लास, तो वो मुझे बहुत ज्यादा, यानी कि मैं बस समझे मेरा दिमाग वहीं लगा रहता है कि हम क्यों सीख रहे हैं, क्या मकसद है इसका, बस और कोई वजह नहीं है। मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही हैं ये सब दो चीजें, जैसे कि दो आपको बातें समझ हैं। में आ गया होगा। दो बातें हैं। एक है कि क्या आपको गर्दान बनानी आ गई है कि नहीं आई, इतना बताएं। इसमें गर्दान नसर शादी नसरा। शादी वाली जो बहुत ज्यादा मुश्किल, अभी जो आखिर में आप जो बता रहे हैं ना गर्दाने, वो जैसे, वो अभी मैं लिखने तक नहीं आई हूँ, हाँ, अभी वो ठहरे ठहरे पिछली ठहरे चीजें लिख ठहरे रही हूँ। ठहरे। वो जो आखिर वाली गर्दानें हैं ना, वो तो हम क्लास के अंदर भी कई दफा कह चुके कि कई 4 साल पढ़े हुए, 5 साल पढ़े हुए, वो भी उन गर्दानों में गलती कर जाते हैं। ओके। की ना बात जी क्लास में। जी 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 अच्छा, जो सादा सिंपल गर्दानें हैं वो बनानी आ गई। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह की या रहमत से माशाअल्लाह। इस पे जी, आप अल्लाह का शुरू शुक्र शुरू अदा की तो करें। शुरू शुरू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह। कि आपका ये सवाल था कि इनका मकसद क्या है, फायदा क्या है, ये सवाल है ना आपका। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले तो मुझे इस बात पर इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि आपका एक सवाल जिसको ज़हन के अंदर आपने समोया हुआ और इतने दिन गुजर गए, और फिर भी आपने मुसलसल क्लास जो है ना उसको ज्वाइन किया हुआ है। कई लोग थोड़ी सी बात बस ज़हन में अटक जाए ना तो छोड़कर भाग जाते हैं, नहीं जी बस ठीक है। तो आपने सवाल किया, मैंने सवाल को लटका दिया। तो मैंने कहा चलें देखते हैं, पता करते हैं स्टूडेंट जो है ना वो ठहरने वाले हैं या भागने वाले हैं। तो आप माशाल्लाह मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबी है कि आदमी एक काम शुरू करे तो फिर वो लगा रहे। अच्छा, आपको गर्दानें तो बनानी आ गई, अगली जो मुश्किल है वो नहीं आई, वो जो पड़े हुए होते हैं उनके लिए भी मुश्किल होती हैं। ठीक है। जी अब आते हैं आपके असल सवाल की तरफ। असल सवाल ये है कि ये गर्दानें, इनका फ़ायदा क्या है और मकसद क्या है। ओके, यही सवाल जी है ना। जी जी। कर लें। जी निकालो निकालो। शेख, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। एक का माइक म्यूट है, सब्र कीजिए थोड़ा। कर लूँ? तो हम आते हैं आपके सवाल की तरफ कि इसका फ़ायदा क्या है। वो मैंने बताया कि आपके पास एक सूट हो जिसके अंदर 10-20 क्वालिटियाँ हों, तो ये फ़ायदे वाली बात है ना। तो आप ने एक दफ़ा ये उसूल याद कर लिया कि एक लफ्ज़ के आगे अलिफ लगाओ, वाव लगाओ, तो ये नया सूट बन जाता है। अलिफ लगाने से, सिर्फ वाव लगाने, एक लफ्ज़ लगाने से। जी। तो मसलन जो है वो अकाला है, उसे एक मर्द ने खाया, और हमने कहना है कि औरत ने खाया, तो हम क्या करेंगे भला। ये वाली ता अकलत। लगा, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए अकाला के आखिर में ये ता लगा कर क्या बोलेंगे। अकलत। अकलत। और अगर कहना है कि एक मर्द ने खाया, फिर ये वाली ता लगाएंगे, ये हो गया वाहिद मुदक्कर मुखातब के लिए ता। फिर इसके आखिर में ता लगा कर क्या बन जाएगा। अकल था। अकल ता, ये हो जाएगा मुदक्कर के लिए।
اگر تا کے نیچے کسرہ آ جائے گا تو یہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا. یہ ہم نیچے دیکھتے ہیں، یہ ہے آپ کے پاس تی، اور یہ ہے واحد مؤنث مخاطب کے لیے. اگر عورت سامنے ہو تو اس کو کہنا ہے کہ تم نے کھایا تو اکل تی کہیں گے، اور مرد ہے تو کہیں گے اکل تا. تو تا واحد مذکر مخاطب کے لیے اور تی واحد مؤنث مخاطب کے لیے. نصرتا نصرتی، اکلتا اکلتی. تو یہ ایک حرف بڑھانے سے پورا ایک معنی بدل گیا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عربی مشکل ہے، بتاؤ، ایک ہے کہ آدمی جو ہے وہ 1000 لفظ یاد کرے، اور ایک ہے کہ آ، 2 3 اصول یاد کر لے اور ایک لفظ سے ہزاروں لفظ بنا لے. تو یہ اصول ہیں اور ان کو ہم ابھی یاد کرتے ہیں. یہ لیں جی، الف جو ہے وہ ہے تثنیہ کی علامت ہے، اور واو جو ہے وہ جمع مذکر کی علامت ہے. اس کے ساتھ بھی آپ تثنیہ مذکر لکھ لیں فی الحال. تثنیہ مذکر اور جمع مذکر، کیونکہ پہلا واحد مذکر ہے. تو یہ سیگا ہو گیا واحد مذکر غائب، اور الف جو ہے وہ تثنیہ مذکر غائب، اور واو جو ہے وہ جمع مذکر غائب. آپ تینوں الفاظ دہرائیں سنیں: واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. نصرا نصرا نصرو. جی، نصرہ نصرا نصرہ واحد مذکر نصرو غائب، نصرا تثنیہ مذکر غائب، نصرو جمع مذکر غائب. یہ دہرائیں اور سنائیں. نصرہ نصرہ واحد مذکر غائب، نصرہ تثنیہ مذکر غائب، نصرو جمع مذکر غائب. استاد محترم، کیا ہم بھی اس کو دہرائیں یا صرف انہی کے لیے ہے یہ؟ جنہوں نے پہلے نہیں یاد کیا ہوگا ان کے لیے. جی، جی جزاک نصرت اللہ. واحد مونس غائب، نصرتا یہ کدھر گیا ہے، تثنیہ مونس غائب، علامت تثنیہ، علامت تانیث، علامت تانیث یہ غلط ہو گیا ہے، ادھر تثنیہ آنا چاہیے. علامت تانیث، علامت تانیث میرے فائل، علامت تثنیہ آنا چاہیے ادھر، علامت تثنیہ. اس کو ایسے یاد کر لیں: تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مونس غائب، تثنیہ مونس غائب، واحد مونس غائب، تثنیہ مونس غائب، نصرنا جمع مونس غائب. یہ پورا لکھا ہوا ہے. تو یہ واحد مونس غائب، یہ تثنیہ مونس غائب، اور یہ جمع مونس غائب. نصرت نصرتا نصرنا، نصرت نصرتا نصرنا. نصرت واحد مونس غائب، نصرتا تثنیہ مونس غائب، نصرنا جمع مونس غائب. تو ہے. جی، کے بعد ہے نصرتا. آپ نے سنایا نہیں. نصرتا واحد مذکر مخاطب، نصرتما توما تثنیہ مذکر مخاطب، مونس کو فی الحال چھوڑ دیں. تثنیہ مذکر مخاطب، نصرتم جمع مذکر مخاطب. نصرتا واحد مذکر مخاطب، نصرتما تثنیہ مذکر مخاطب، نصرتم جمع مذکر مخاطب. یہ چارٹ گروپ میں شیئر کریں. نہیں شیئر کیا پہلے؟ شیئر کر دیتے ہیں.
सर जी, अगर जो मुझे समझ आई है कि इस गर्दानों का क्या फायदा है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी बताएं, क्या समझ आ गई? जी। जो मुझे समझ आई है उसके मुताबिक कि हम एक जुमले से 14 जुमले बना सकते हैं, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल ठीक एक अद बात। अल्फाज के थोड़े से इजाफे से। और दूसरी ये कि एक पैटर्न पर हम हजारों आगे बना सकते हैं, एक हम वजन जबरदस्त, पर हजारों जबरदस्त। जुमले बन आप, सकते हैं। आपकी तालीम क्या है? और तीसरा, शाजिया, आपकी जी, तालीम क्या है? मैंने ग्रेजुएशन की। जी अच्छा, सर जी, आपने मैंने बिल्कुल। ग्रेजुएशन की हुई और ग्रामर कोर्स लिसानुल कुरान कर रही हूँ एक इदारे अच्छा, से। अच्छा, आप ये बताएं, जो लिसानुल कुरान आप कर रही हैं उसके अंदर आपको ये बात समझ आई जो आपको यहाँ पर ये बात समझ आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से उधर भी समझ आई है, लेकिन अभी मेरी आगे की गर्दानें रहती थी। और थोड़ा वहां पर ये था कि मैं इतनी रवानगी से नहीं कर पाई थी यहाँ पर। मतलब जो सुनाने में नहीं, जो रवानगी आई इस है वो नुक्ते यहाँ से थोड़ा सा मुझे। इस नुक्ते की आपको उधर समझ आई कि इस नुक्ते की आपको इधर समझ आई? नहीं आपने नहीं, ये नुक्ता। ये समझ ले कि इतने अरसे से जो तकरीबन मैं 1.5 2 साल से ग्रामर के पीछे हूँ, तो ये बात मुझे समझ आई है सारी चीजों से मिला के, हाँ कि ठीक है, ये ठीक है। वजह है गर्दानों की। और हाँ, एक और भी अगर हम इसका फायदा देखें बहन के लिए, कि अगर कोई जबान हम सीखना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखना चाहते हैं, तो उसके सेंटेंस बनाने अहम बात होती है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो उर्दू हो या कोई भी एज इट इज। तो उसके लिए हमें जो जुमले बनाने हैं, ये हम समझ लें हम वो जुमले वो सेंटेंस सीख रहे हैं किसी भी जबान के। उसको उसमें उसको सीखने के लिए तो हम एक जुमले से एक पैटर्न से हजारों जुमले बना सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये ठीक है है। इनका मुझे जो समझ आई। आपको बिल्कुल ठीक समझ आई और बहुत अच्छे से समझ आई। और आपने तो समंदर को पूजे में बंद कर दिया। जी, बारकल्लाह फीक। जी, उसके बाद है तातुमा तुम। उसके बाद ती, वाहिद मुअन्नस मुखातब। और तुमा, यहाँ पर आ जाएगा तस्निया मुअन्नस मुखातब। ये चूंकि तुमा इधर भी है, तुमा इधर भी है, इसलिए उनको इकट्ठा करके लिख दिया। तो आप इसको इधर ही याद कर ले, तस्निया मुअन्नस मुखातब तस्निया। और ये जमा हो जाएगा तुन्ना। ती तुमा तुन्ना ती। वाहिद मुअन्नस के लिए ये ती है। ये ती पूरे कुरान में, पूरा ज़ख़ीरा हदीस में जहाँ भी ती आएगा तो ये वाला शिक्का होगा वाहिद मुअन्नस, एक औरत के लिए। और वो औरत जो मुखातब जिससे बात की जा रही हो, जो सामने हो। तोमा तस्निया मुअन्नस मुखातब के लिए, तुन्ना जमा मुअन्नस मुखातब के लिए। ती तुमा तुन्ना। ती वाहिद मुअन्नस मुखातब, तस्निया मुअन्नस मुखातब, जमा मुअन्नस मुखातब। अच्छा, ये है, आपको ये सीगा बता रही है, ये सीगे बता रहे हैं ना कि इसकी साखत एक के लिए है, दो के लिए है, ज्यादा के लिए है, गायब के लिए है, मुखातब के लिए है। इसको बोलते हैं सीगा, बनावट उसकी, ढांचा। और अगर देखें नाहव के एतबार से, तो नाहव का अगला ये पार्ट है ज़मीर फाइल, ज़मीर फाइल, ज़मीर फाइल। ये बात नाहव के मुतालिक है कि इसकी अगर आप तरकीब करेंगे तो इसको कहेंगे फेल, और तुमा को कहेंगे फाइल, नसर को कहेंगे फेल, तुम को फाइल। फेल फाइल, फेल फाइल। ये जो ता तुमा तुम ते तुमा तुना, ये सारी क्या बनती हैं? फाइल। नसरती तो एक औरत ने मदद की, तो ये मदद करने वाली तो एक औरत होगी ना, जो इससे बात कर रहे हैं, तो वो होगी फाइल, काम करने वाली। और ऐसे ही नसर तो जो है वो वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, यानी मुज़क्कर के लिए भी औरत के लिए भी, जो मुतकल्लिम बात करने वाला मर्द हो वो भी ये बोलेगा नसर तो, और औरत हो वो भी यही बोलेगी। यानी एक सीगा दोनों अफराद बोल सकते हैं, मर्द भी बोल सकता है, औरत भी बोल सकती है। और नसरना चार अफराद बोल सकते हैं, तस्निया जमा मुज़क्कर मुन्नस। यानी दो मर्द ये लफ्ज़ बोल सकते हैं, दो औरतें ये लफ्ज़ बोल सकती हैं, और ज़्यादा मर्द ये लफ्ज़ बोल सकते हैं, ज़्यादा औरतें वो भी ये लफ्ज़ बोल सकती हैं। एक दो तीन चार, यानी चार अफराद ये लफ्ज़ बोल सकते हैं नसरना।
दो बंदे खड़े हैं कहेंगे नसारना, दो औरतें कहेंगी नसारना, ज्यादा बंदे हैं वो भी कहेंगे नसारना। अकलना, मसलन अकलना, खाना खाया हमने, दो मर्द भी कहेंगे अकलना, दो औरतें भी कहेंगी अकलना, ज्यादा मर्द भी कहेंगे अकलना, और ज्यादा औरतें भी कहेंगी अकलना। जिन्होंने ये शनाख्त पहले पढ़ी हुई है उनकी तो उनके फाहम में मजीद इजाफा हुआ होगा, और जो जिसने पहली दफ़ा सुना है उसको कुछ कुछ समझ आई होगी, इला ये कि बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। और बिल्कुल ज़्यादा समझने के लिए आप जो है इसको डिटेल के साथ पढ़ें, जहाँ पर हमने सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ाया। अगर कोई एक उसका लिंक क्लास में शेयर कर दे तो भी जो है उससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, तो इसके अंदर ये जो अलामतें हैं अलिफ और वाओ, और ये अलिफ, ये ता, ये नून, तो ये दो काम करती हैं। एक जो है वो सिगे की शनाख्त करती हैं, और दूसरा तरकीब कराती हैं ज़मीर फ़ाइल। अलामतें जमा मुन्नस ये एक काम हो गया, और दूसरा ये काम हो गया। इसका ताल्लुक नाहव के साथ हो जाएगा, और इसका ताल्लुक सरफ प्लस लुगत के साथ हो जाएगा। लुगत का मतलब कि अब ये लफ्ज़ किस लिए बन गया है, ठीक है, सरफ सिगे की शनाख्त हो जाएगी। तो ये चीज़ें दो बता देगा, और जो ज़मीर फ़ाइल ये नाहव के एतबार से बात कर देगा। तो ये कई चीज़ें आपके सामने खोल कर सामने रख देगा। हाँ, ये मरसा निकाह, इस ग्रामर से हमें कुरान का तर्जुमा मदद मिलती है। हाँ, ये जो तालिबात हमारे पास पढ़ रही हैं और तर्जुमा पहले पढ़ाती थी, अब ग्रामर पढ़ने के बाद जब तर्जुमा पढ़ाती हैं तो फिर उनको खुद एतमादी और लफ्ज़ के अंदर से तर्जुमा निकालना, और उसूलों के मुताबिक अब ये एक के लिए है, दो के लिए है, ज़्यादा के लिए है, तो फिर उनको उससे जो हलावत और मिठास महसूस होती है वो एक अलग ही है। जी सर जी, ये है कि कुरान जब हम पढ़ते हैं ना, तो फिर अब समझ आने लगी है कि रब कह क्या रहा है, और इसमें मजा आने लगा है। अब ये समझ आने लगी है कि जब कारी, अरबी कारी जब कुरान पढ़ता है तो वो रोता क्यों है। अब ये समझ आने लगी है कि हम कुरान अल्लाह ने अरबी में क्यों नाजिल किया। ये सारी बातें, इसमें जो मिठास और इसकी जो अरबी की वुसअत है ना, वो समझ आने लगी है। हाँ, पर एक स्टूडेंट ने बताया कि पहले वो तर्जुमा पढ़ाती थी तो अरबी है और उसका तर्जुमा है। अच्छा, तर्जुमा रट लिया है, अच्छा किस लफ्ज़ का क्या माना है ये पता नहीं होता था। मसलन एक आयत है आधी लाइन की, पूरी लाइन की, उसका तर्जुमा उर्दू से उधर से वो रट्टा लगा लिया। अब अरबी इबारत पढ़ी और उसका तर्जुमा सुना दिया। तर्जुमे का अरबी इबारत के साथ जोड़ नहीं जुड़ता था कि इस लफ्ज़ का माना क्या है, इस लफ्ज़ का माना क्या है, इस लफ्ज़ का माना क्या है। अब जब ग्रामर पढ़ी तो एक एक लफ्ज़ अपना माना और मदलूल बता रहा होता है। जैसे अभी इसने स्टूडेंट ने कहा कि अरबी कुरान पढ़ते हुए रोते क्यों हैं, तो एक एक लफ्ज़ की गहराई के पीछे कि यहाँ किसी कौम की हलाकत की बात हो रही है, उनको पानी में गर्क करने की बात हो रही है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक लफ्ज इंसान को वहां तक पहुंचा देता है। जी, तो हम आते हैं अ, अपने थोड़े से सबक की तरफ। तो आज हमने नया सबक शुरू करना था, वो क्या करना था, वो करना था हमारी कर गई मुजारी का। आज हमने आगाज करना था, टाइम भी पूरा होने को है। चलिए देखते हैं मुजारी किधर है हमारे। अब सरफ, और उसमें हम मुजारी की बात करते हैं। लेकिन मुजारे का टेबल पड़ा हुआ है कहीं, जवाब में टेबल, एराब टेबल पड़ा हुआ है, मुजारे का टेबल कहाँ है। एराब मुजारे अजब, इधर नजर नहीं आ रहा।
इब्न अवामी चले आते हैं। बस कहीं होगा, पता नहीं किधर, टैब के अंदर नहीं है। आपने माइक ऑफ रखें भाई, अगर पक्के पक्के बंद कर देने। जी, तो अभी आते हैं मुदारे की गर्दान, यानी पहले वाले पार्ट। ये जो है इससे 14 सीगे बनते हैं। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम। तो एक लफ्ज़ से 14 लफ्ज़ बने। तो जैसे इससे 14 लफ्ज़ बने, ऐसे ही यनसुरु से भी 14 लफ्ज़ बनेंगे। एक गर्दान आपने याद कर ली, तो बकिया इस तरह की गर्दानें जिनमें कोई तब्दीली नहीं होती, वो आसानी के साथ होती चली जाएंगी। इसलिए हम पहले वही गर्दानें इसको याद करने के बाद करेंगे जिनमें तब्दीली नहीं होती, ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो आते हैं यनसुरो की तरफ। तो यनसुरो, पहले हमने इधर लगाया था सिर्फ अलिफ, इसमें दो चीज़ें लगाएंगे, अलिफ और नून। यनसुरो, यनसुराने, वाव और नून, यनसुरूना, तीन अल्फाज बन गए हैं। यनसुरो, यनसुराने, यनसुरूना, तीन अल्फाज दोहराए सुना है। यंसुरु यंसुरानी ये- यंसुरून यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरून। यंसुरु यंसुरु यंसुरान यंसुरून। यंसुरूना यंसुरु यंसुरानी यंसुरून यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना। यंसुरु चाहिए यंसुरानी यहाँ पर यंसुरून मौजूद है माहिरा। यहाँ पर ये देखते ही ना, टेबल देखते ही मोहम्मद बोला, कहता है ये महमूद उल्फा है, महमूद उल्लाह है, महमूद नहीं नहीं है। मैंने कहा वो आता ही नहीं। कहता आता है। मैं किधर आता है? कहते साला या साला। मैंने कहा वो साला या वब नसरा। कहते हाँ ये तो वब नसरा नहीं है। मैंने कहा हमने जो टेबल तैयार किया है वो बता देता है कि इससे महमूद ऐन नहीं, इससे मिसाल नहीं। अब इसके अंदर मिसाल भी कोई नहीं, देखें मिसाल वाला भी कोई नहीं, और मिसाल यही भी नहीं। किस कदर कीमती टेबल है। मैंने कुछ किया है क्या नहीं जी, तो यनसुरो, ये जो भेजा ना ये दूसरा है। मैं सीखों वाला कहना चाहता हूँ। ये तो मुकम्मल इराब वाला है ना, इराब। तो सिर्फ सिगों की शनाख्त, जैसे हमने माजी में सिगों की शनाख्त वाला बनाया हुआ है, तो ऐसे मुदारे की सिगों की शनाख्त वाला वो नहीं बना हुआ। ना है शायद मंगवाते जी, अगर बना हुआ तो उसको इधर शेयर कर दे, इसको ओपन करके देख लेते हैं। जी, तो यहाँ पर देखें कि इधर भी नसरा, नसरा और नसरू, अलिफ और वाव लगा। तो इधर भी अलिफ और वाव लगाना है और साथ नून लगा देना है। बस थोड़ा सा हमें इजाफा करना पड़ा। तो यनसुराने और यनसुरूना, अलिफ के बाद नून मकसूर होता है और वाव के बाद नून मफ्तूह हो गया। तो एक ही वक्त में कई फायदे। और ये अलिफ तस्निया के लिए हो गया और ये वाव जमा के लिए हो गई, खा वो माजी में हो या मुदारे में हो। नसरा, नसरा, नसरु, वाहिद तस्निया जमा। यनसुरो वाहिद, यनसुराने तस्निया, यनसुरूना जमा। और ये जो नून है शुरू में जब लम लगेगा, फिर ये नून गिर जाएगा। लम यनसुर, लम यनसुरा, लम यनसुरु। इसको नून एराबी कहते हैं।
جو جزمی حالت میں گر جاتا ہے، جزمی حالت میں حذف. کہ لم، لما، لام امر، لم یلد ولم یولد، تو ادھر ضمہ ہو سکون آ جائے گا، حرف علت ہو وہ گر جائے گا، ضمہ ہو سکون آ جائے گا، حرف علت ہو تو گر جائے گا، نون رابی ہو تو گر جائے گا. تین چیزیں گر جائے گی: ضمہ، حرف علت، نون رابی. اچھا یہ آ گیا جی مضارع کی شناخت. چلے ہم ادھر سے ہی پڑھ لیتے ہیں. تو آج کا گویا کہ سبق ہو جائے گا ماضی اور مضارع کی شناخت. اور کوئی ایک جو سیمسٹر 1 کے اندر اگر ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھایا ہے تو اس کا لنک بھی بھیج دیں، اور گروپ کے اندر، اور ساتھ کہہ دیں کہ یہ ماضی اور مضارع کی شناخت کے حوالے سے ہے، تو لہذا اس کو آپ لوگ کیا کریں، یاد کر لیں، سن لیں مکمل اور سمجھ لیں، جنہوں نے پہلے ماضی اور مضارع کی شناخت نہیں پڑھی ہوگی. اتنا بڑا ہو گیا. جی تو یہ تو بڑے جو ہے وہ پورا گریڈ اسٹیشن بنا دیا ہے سمرین. آپ نے دیکھو اتار کدھر کو جا رہی ہے، کو کدھر کو جا رہی ہے، ہاں الیکٹریشین جال بچھا دیا آپ نے. تو الف ہو گیا نا، ینصران، الف، ینصرون. واو کدھر ہے، واو کا کدھر بتایا؟ اچھا یہ واو کا بتا دیا. اچھا کیا بات ہے، کدھر ہے واو؟ یہ تو پہلے تاریں پکڑنی پڑیں گی، یہ مشکل لگ رہا ہے ہمیں. ہم پہلے ادھر سادہ سادی پڑھتے ہیں. جی یہ نہ ہو کہ کیا نام تھا جس نے سوال کیا تھا؟ ہما، ہما نے سوال کیا تھا. جی لیکچر سننے کے بعد اس کو اس کی مکمل سمجھ آ جائے گی، اور اس سے باریک نکات بھی وہ خود نکال لیں گی. تو ابھی آتے ہیں ہم اپنی گردان یاد کرتے ہیں. تو یہ ماضی اور مضارع کے دونوں لیکچر گروپ میں شیئر کر دیں. تو ہم نے اس سے گردان بنائی، جو کہ امید ہے 3 لفظ سبھی کو یاد ہو چکے ہوں گے. الف لگایا، واو لگائی، الف کے بعد نون مکسور، واو کے بعد نون مفتوح. ینصرو، ینصران، ینصرون، ینصرو، ینصران، ینصرون. اب شروع میں آ جائے گا تا. کہاں لکھے اس کو؟ جی آپ کے پاس لفظ ہے ینصرو، تو آپ لگائیں اس پہ الف، نون اور واو، نون. ینصرو، ینصران، ینصرون، ینصران، ینصرون. اب شروع میں تا لگا دینی ہے، تنصرو. ادھر بھی الف نون لگا دیں، تنصران. لیکن یہ سیگا جو ہے ہٹ کر ہوگا، اس میں یا نصورنا شروع میں یا آ جائے گی، اور یہ عورتوں کا سیگا ہے، بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے. تنصرو، تنصران، اس کے شروع میں تا ہی رہے گی، یعنی ایسے لفظ ہی نیچے آ جائے گا. تنصرو، تنصران، ینصرنا. اب یہ 3 لفظ دوہرا اس میں، تنصرو، تنصران، ینصرنا، تنصرو، تنصران، ینصرنا، تنصرو، تنصران، ینصرنا. پہلے 2 میں تا، اور پھر اس میں ہے یا، ان میں 2 میں تا. تنصرو، تنصران، ادھر ہے یا، ینصرنا. تنصرو، تنصران، ینصرنا، تنصرو، تنصران، ینصرنا، دوہرا اس میں. تنصرو تنصرانی ینصرنا. تنصرو تنصران تنصرو تنصران ینصرنا. ینصرن، تنصرو تنصران ینصرن. تنصرانی ینصرنا.
तंसुरु तंसुरानी यंसुरना। सर पूरी कीर्तन पढ़ाइएगा। जी, यंसुरो यंसुराने यंसुरूना, ये या ऐसे ही रहेगी। यंसुरो यंसुरानी यंसुरा, तंसुरो तंसुरानी यंसुरना। इसके बाद फिर आप कर लें ताई शुरू में आएगी, तंसुरो और तंसुराने तंसुरूना, यानी बस अलिफ नून वाव नून जैसे पहले दो सिगों में। इधर है यंसुरो यंसुरानी यंसुरूना और इधर हो जाएगा तंसुरो तंसुराने तंसुरूना, यानी बिल्कुल सेम एक जैसे होंगे। यंसुरो यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरो तंसुरानी तंसुरूना। ये सीगा थोड़ा सा हटकर है, ये वाहिद मुअन्नस मुखातब का सीगाना है और ये भी ख़ास अहमियत का हामिल है। तंसुरीना, इसमें या लामत होती है, तंसुरीना। आगे अलिफ नून ही लगाना है, तंसुरानी। और इधर जैसे ये यंसुरना था तो ये सीगा आ जाएगा और शुरू में ता होगी, तंसुरना। अब आपने सिर्फ ये तीन सीगे सुनाने हैं, तंसुरीना तंसुराने तंसुरीना तंसुराने तंसुरना, तंसुरीना तंसुराने तंसुरना, तंसुरीना तंसुराने तंसुरना। तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। तंसुरीना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। ये आखिरी दो सीगे याद करें, अनसुरो ननसुरो, अनसुरो ननसुरो, अनसुरो ननसुरो। अंसुरु नंसुर। अंसुरु नंसुर। अंसुरु अंसुरु अंसुरु। अब पूरी को करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। इन तीन के शुरू में है या, और इन दो के शुरू में है ता, और आखिरी के शुरू में है या, ता और या। यंसुरो यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरो तंसुरानी यंसुरना। दोबारा, यंसुरो यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरो तंसुरानी यंसुरना। और इन सब के शुरू में है ता, तंसुरो तंसुराने तंसुरूना तंसुरीना तंसुराने तंसुरना। इसके शुरू में है हमजा और इसके शुरू में है नून। अंसुरो नंसुर, अंसुरो नंसुरो। दोबारा, यंसुरो यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरो तंसुरानी यंसुरना, तंसुरो तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। अंसुरो नंसुरो दोहराएं और जिनको याद हो जाए वो सुनाए। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना। तंसुरु तंसुरानी तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। अंसुरु नंसुर। यंसुरु यंसुर। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। अंसुरु नंसुर। अंसुरु नंसुर। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। अंसुरु नंसुरु। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। अंसुरु नंसुरु। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। अंसुरु नंसुर। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। अंसुरु नंसुर। तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। अंसुरु नंसुर। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। अंसुरु नंसुर। जी, ये एक और टेबल भेजा है, हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये आ गया। हाँ जी, ये है यंसुरो यंसुराने यंसुरूना, तीन सीगे आ गए। तंसुरो तंसुराने यंसुरना,
वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्नीय मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुन्नस गायब, तस्नीय मुन्नस गायब, जमा मुन्नस गायब। तंसुरो तंसुराने तंसुरूना, वाहिद मुन्नस मुज़क्कर मुखातिब, तस्नीय मुज़क्कर मुखातिब, जमा मुज़क्कर मुखातिब। तंसुरीना तंसुराने तंसुरन, अनसुरुन अनसुर। ये जी ये है आपके गर्दान। तंसुरो यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरो तंसुरानी यंसुरना, तंसुरो तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना, अनसुरुन अनसुर। इसको याद करें और इनके नीचे हिस्से भी लिखे हुए हैं। तो ये बुनियादी टेबल जो है ये मुफीद है बुनियादी तौर पर। और जो दूसरा था वो ज़्यादा थोड़ा सा महारत के बाद जो है उसको आप समझ पाएंगे, और उसके अंदर एक अलग चीज़ बयान की गई है। तो बुनियादी तौर पर आप यही गर्दान ही जिन्होंने पहले नहीं याद की हुई वो इसको याद करें। दोहरा इसमें यंसुर यंसुरानी यंसुरूना, तंसुर तंसुरानी यंसुरना, तंसुर तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना, तंसुर नंसुर। जी, यंसुर यंसुरानी यंसुरूना, तंसुर तंसुरानी यंसुरना, इधर या तंसुर तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीन तंसुरानी तंसुरना, अनसुर नंसुर। यहाँ पर याद ये इसको काबू करना होता है, गुड मुड हो जाते हैं अल्फाज। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना अंसुरु नंसुर। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना, अनसुरु नंसुरु। जी बारक। यंसुर यंसुरानी यंसुरूना पहले उसकी उर्दू बता दिया करें। यंसुर का माना वो एक मर्द मदद करता है या करेगा, वो एक मर्द मदद करता है या करेगा। आगे फिर दो हो जाएंगे, आगे ज्यादा हो जाएंगे, फिर औरत हो जाएगी, वो एक औरत मदद करती है करेगी, फिर दो औरतें हो जाएगी, फिर ज्यादा औरतें हो जाएंगी। जी, टाइम तो पूरा हो चला। और इस गिरदान के मुतालिक क्या कुछ समझाया जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम जो है वो नहीं समझाएंगे क्योंकि हमने गर्दानें याद करानी है। हमारा जो सबक है वो दौरा सरफ है। तो यंसुरो की तरह ही या मोरो की गर्दान होगी। या बुरो या मुराने या मुरूना, तामुरो तामुराने या मुरना, तामुरो तामुराने तामुरूना, तामुरीना तामुराने तामुरना, आमुरु नामुरु। ये तो एक सुनाई। यअमुरु यअमुरानी यअमुरूना तअमुरु يأمر तअमुरानी يأمر यअमुर तअमुरु तअमुरानी يأمرنا तअमुरना تأمر تأمرين تأمران अयमुरु। تأمرنا أأمرنا। हाँ जी, तो आज ये दो गर्दानें समझ लें, यंसुरो या मुरो। या हन्नो ओ भी कर लें, या हन्नो ओ, लेकिन ये हा को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लिखेंगे तो फिर आसानी से लिखा जाएगा। या हन्नो ओ, या हन्नो आने, या हन्नो ऊना, तहनो ओ तहनो आने, या हन्नो ना, तहनो ओ तहनो आने, तहनो ऊना, तहनो ईना, तहनो आने, तहनो ना, अहनो ओ नहनो ओ। आज के सबक में चलें, ये सिर्फ तीन गर्दानें आपकी होगी, यंसुरो या मुरो या नो। तीन और ना कर लें, ये आसान है।
यजरिबो यासिरो यहनिउ। चले 3 ये कर लें ताकि थोड़ी सी तादाद भी हो जाए ना, 6 हो जाएंगी फिर। यजरिबो यजरिबाने यजरिबूना तजरिबो तजरिबाने यजरिबना तजरिबो तजरिबाने तजरिबूना तजरिबीना तजरिबाने तजरिबना आदरिबो नादरिबो। तो यादरिबो की गर्दान कोई एक सुनाए। यजरिबु यजरिबानी यजरिबुना तजरिबु तजरिबानी यजरिबना तजरिबु तजरिबानी तजरिबुना तजरिबीना तजरिबानी तजरिबना अजरिबु नजरिबु। और या सिरो की गर्दान भी इसी तरह हो जाएगी। या सिरो या सिराने या सिरूना तासिरो या सिरो तासिरो तासिराने या सिरना तासिरो तासिराने तासिरूना तासिरीना तासिराने तासिरना आसिरो नासिरो। या सिरो की गर्दान दोहराइश है। يأسر يأسران يأسرون تأسر تأسران يأسرن تأسر تأسران تأسرون تأسرين تأسران تأسرن أأسر نأسر माशाअल्लाह बारकल्लाहु। यहने ओ यहने आने यहने ऊना तहने ओ तहने आने यहने ना तहने ओ तहने आने तहने ऊना तहने ईना तहने आने तहने ना आहने ओ नहने ओ। दोहराओ और सुनाओ। يهنئ يهنئان يهنئون تهنئ تهنئان يهنئن تهنئ تهنئان تهنئون تهنئين تهنئان تهنئن أهنئ نهنئ हाँ बारकल्लाह। मोहम्मद ने गर्दान सुनाई थी कल परसों, जब मैंने कहा था शादमा ने इतनी तेज सुनाई है, उसमें कहा लो अटकन आ गई है। फिर उसने सुनाई थी, शायद किसी को याद हो। يعني يعني أن يعني هنا تعني تعني أن يعني لا تعني تعني أن تعني هنا تعني إن تعني أن تعني الآن. अब यह नो ओ पेश लगा कर सुनाओ। यह नो ओ ये वाली गर्दान होगी, इधर है पेश ये वाली। यह नो ओ يهن يهنو يهنو أن يهنون تهنو تهنو أن يهنون تهنو تهنو أن تهنون تهنو إن تهنو أن تهنون أهنون आह नो ओ। हा और हमजा का आपने मखरज से अदा नहीं किया अकबर साहब। हाँ जी चले, जा रहा था मैंने कहा इधर आओ गर्दान सुनाओ। जी दौरा वो दौरा सर्फ कर रहा है, वो ये वाला गर्दनों वाला दौरा करता है, पास बैठा होता है, सुनाता नहीं है। और दौरा एराब वो नहीं कर रहा, वो मदरसे के अंदर एक दौरा हो रहा है, वो उसमें शामिल है। या नो वाली गर्दान कैसे लिखें, कलम के साथ लिखें। जी तो ये 6 गर्दानें हैं, कोई एक इन 6 अल्फाज को लिख भेजे ताकि इनको ग्रुप में भेज दें, और फिर सब ये 6 गर्दानें लिखेंगे। और जो नए तलबा हैं वो याद रखें कि 2 गर्दानें एक जो उनको हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, नसरा नसरा नसरु उनके सीगों की शनाख्त, और यनसुरु यनसुराने इसकी सीगों की शनाख्त, ये सीगों की शनाख्त ज़रूरी है। तो इनको आप लोग जो है पढ़ लें, अगर पहचान हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो फिर आप सेमेस्टर 1 में ऐड हो जाना। और जो पुराने तलबा हैं उनको तो शनाख्त यकीनन होगी। वो होगी कि मैं वैसे ही कह रहा हूँ, यकीनन होगी। चलें जी, फिर इसी पे इक्तिफा करते हैं। वो अगली क्लास शुरू होनी थी, मुझे याद भूल गया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
سبحان ربک رب العزة عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔